پاکستان میں اقتدار کی رساکشی اور 8 ماہ سے جاری سیاسی افراتفری نے ملک کی معیشت کی چولیں ہلا دی ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے انفلوز کو بھی بریک لگ رہے ہیں۔ IMF سمیت عالمی مالیاتی ادارے، چین، سعودی عرب، دیگر دوست ممالک حکومتی اور سیاسی استحکام مانگ رہے ہیں۔ دنیا کو یقین نہیں شہباز حکومت اس طرح کب تک چلے گی اور کیسے چلے گی، اگلے سال بجٹ بھی پیش کر سکے گی یا نہیں۔ تمام معتبر اداروں کے سروے میں ملک میں سیاسی استحکام کی مانگ ہے۔ پہلا پاکستان، اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس، پائیڈ، اپسوس کے عوامی جائزہ رپورٹس ملک میں معاشی بحران کو اولین اہمیت دے رہے ہیں۔ سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے IMF خاموش ہے۔ شہباز حکومت اور IMF میں ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب 72 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں، جو جنوری 2019 کے بعد سب سے کم ترین سطح ہے۔ بیرونی ادائیگیوں کے لیے تشویش کی لہر ہے۔ تمام معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ سیاسی عدم استحکام ملک کی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ ماہرین ڈیفالٹ کے خطرات سے متنبع کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک میں ایکسٹریم نیچر آف پولرائزیشن ہو گئی ہے اور یہ ملک کے لیے ایک زہر قاتل ہے۔ جتنی جلدی اس سے نکلیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ یہ معیشت تباہ ہو جائے گی۔ Election is the only solution at this moment in time۔ آپ اس کو پرولونگ کریں گے اور تباہی ہوگی ملک۔ اس کو پرولونگ کر کر کے ہم نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ جتنی جلد ہو یہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ انسرٹنٹی کے بادل چھٹ جائیں۔ Number one thing is political stability. Whatever it takes, we've got to give the impression to the world that politically ہم ایک stable direction پہ جا رہے ہیں۔ اس کی جب بھی الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں 10 مہینے کی جگہ 8 مہینے میں کر دیں، بٹ اناؤنس ان الیکشن ڈیٹ جس کی وجہ سے ایک اسٹیبلٹی آئے گی۔ ہماری اکانومی اس کا متحمل نہیں ہو سکتی کہ جی ہم یہی انتظار کرتے رہیں کہ الیکشن 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، 9 مہینے میں، 12 مہینے میں۔ یہ سب پولیٹیکل پارٹی ساتھ بیٹھ کے اس پہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے یہ ایگری کریں کچھ سٹیپس کے اوپر۔ سب سے بڑی جو وجوہات ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ شیک ہو گیا۔ 77% آف دا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آؤ۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لے کر آئیں گے تو ہم اس کا معاملہ حل نہیں کر سکتے۔ بیرونی اگر عدم استحکام ہوگا سیاسی طور پہ تو بیرونی دوست جو ہیں، چین ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، وہ آپ کے معاملے میں پڑنا نہیں چاہیں۔ ضرورت ہے کہ ڈومیسٹک اسٹیبلٹی جو ہے پولیٹیکل، اس پہ کام کیا جائے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور سنگین معاشی بحران ایسے وقت ہے جب پاکستان اندرونی اور بیرونی قرضوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ معاشی ماہرین قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کو پاکستان کی فوری ضرورت قرار دے رہے ہیں۔ اگلے 3 برس کے دوران پاکستان کو 73 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر اس کا عشر بھی نہیں ہیں۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے ایک رپورٹ کے مطابق اس پر پاکستان پر 130 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے GDP کے 40% کے برابر ہو چکے ہیں۔ جون 2022 تک پاکستان کے اندرونی اور بیرونی قرضے 60,000 ارب روپے ہو چکے ہیں، جو ملک کی GDP کا 90% ہوگا۔ گویا قرضوں کی ری اسکیجولنگ اور ری اسٹرکچرنگ کے بغیر گزارا نہیں۔ صرف اس مالی سال پاکستان کو 23 ارب ڈالرز کی بیرونی ادائیگیاں اور کم از کم 10 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا انتظام کرنا ہے۔ بہرحال گورنر اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اطمینان ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ قرضوں کی ادائیگی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ تمام بیرونی ادائیگیاں بر وقت کر دی جائیں گی۔ جو ہمارا ایکچوئل ری پیبل ڈیٹ ہے اس میں 23 بلین ڈالر ری پیبل ڈیٹ تھا اور 10 بلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو ٹوٹل ملا کے کوئی 33 بلین ڈالر بنتے تھے، جو کہ ہم نے جو وسائل ہمیں اویلیبل ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنا یہ مالی سال جو ہے اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے گزار سکیں۔ اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 23 بلین ڈالر کا جو پرنسپل اماؤنٹ جو ہمیں ری پے کرنا تھا، اس میں سے آلریڈی 6 بلین ڈالر سے زیادہ اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان نے غیر ملکی قرضے واپس کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ 4 بلین ڈالر جو ہے وہ بائی لیٹرل لون جو تھے، جو کہ آلریڈی متعلقہ گورنمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو رول اوور ہو چکا ہے اور اس کے اگریمنٹس وغیرہ بھی سائن ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح یہ 6 بلین اور 4 بلین 10 بلین تو ٹوٹل یہ آپ کہہ لیں کہ آلریڈی جو غیر ملکی قرضہ ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ 23 میں سے 10 نکال دیں تو 13 بلین ڈالر جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس 13 بلین ڈالر میں 8.3 بلین ڈالر کے قرضے ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کمرشل لونز ہیں، تو ان کا 8.3 بلین ڈالر جو ہے یہ ان کی رول اوور کی ہمیں توقع ہے، اور جس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آلریڈی جو ہے بات چیت ہو چکی ہے۔ تو اگر ان 8.3 بلین کو بھی ہٹا دیں تو 13 میں سے 8.3 بلین یہ نکلنے کے بعد ہمارے پاس کوئی 4.7 بلین ڈالر کے قرضے ایسے ہیں جو کہ ہمیں واپس کرنے ہیں۔ اس 4.7 بلین میں سے 1.1 بلین ڈالر ایسے ہیں جو کہ کمرشل لون ہیں۔
जो कि हमने गैर मुल्की बैंकों को वापस करनी है, और इसके अलावा हमें कोई अब इस साल के अंदर कोई यूरो बॉन्ड वापस नहीं करना, उसकी कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है। और इसके अलावा कोई 3.5 बिलियन के करीब जो है वो मल्टीलैटरल्स के लोन्स हैं और दूसरे लोन्स हैं जो हमें वापस करने हैं। तो ये कुल मिला के हमारा ये कर्जा वापस करने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे एनालिस्ट जो इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं और मनफी किस्म का एक इंप्रेशन दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और डेट रीपेमेंट की सूरत हाल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में, और इंशाल्लाह हम आने वाली पेमेंट्स को भी ऑन टाइम पूरा करेंगे। क्या वाकई पाकिस्तान के लिए सूरत हाल इतनी इत्मीनान बख्श है? तशवीश की कोई बात नहीं, मईशत के लिए कोई मसाइल नहीं है। और फिर आखिरी सबसे सारी सूरत हाल है तो सवाल ये है कि पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर को क्या हो रहा है और पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट का क्या हाल हो चुका है। इस वक्त ओपन मार्केट और जो सरकारी नर्ख हैं या इंटर बैंक रेट्स हैं उसमें 25 से 30 रुपए का फिर फ़र्क क्यों हो रहा है? हवाला का कारोबार पूरी शबाब पर क्यों है? इन तमाम उन सवालों के जवाब किया है। और फिर क्यों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एलसीज नेगोशिएट नहीं कर रहा, कन्फर्मेशन नहीं हो रही, और फिर जो ज़रूरी ज़र मुबादला हमें चाहिए अपने इंपोर्ट्स के लिए वो क्यों अवेलेबल नहीं है? इन सवालों के जवाब तो बहरहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे पा रही। वो क्यों नहीं दे पा रही, इसका जायज़ा लेने के लिए हमने एक बहुत ही उम्दा पैनल तश्कील दिया है। माशी और कारोबारी उमूर के माहिरीन हमारे साथ हैं। जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, जनाब आबिद क़य्यूम सुलेरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI, और जनाब आसिफ हारून बहुत ही सीनियर हमारे टैक्स उमूर के माहिर हैं, हमारे साथ हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, आप बताइएगा कि जब आप लोगों ने ये रिपोर्ट की और भी दूसरे जो माहिरीन हैं वो इस पर बात कर रहे हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं और जो हमारे बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी है वो बहुत शदीद प्रेशर पे हैं और उसके अंदर हमारे लिए बड़ी सीरियस कंसर्न्स मौजूद हैं। अभी हमने सुना था, आपने देखा कि गवर्नर स्टेट बैंक बिल्कुल उन्होंने ब्रश असाइड कर दिया, उनके ख्याल में कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ बड़ी कंफर्टेबल है। आपने उनका बयानिया भी सुना, ये कितना मुतासिर कुन है और आपकी कितनी परेशानियाँ दूर हुई और हम सब क्या अब परेशान ना हों? थैंक यू कामरान साहब। देखिए, हमने जो एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है पाकिस्तान डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे, उस पर हमने ये देखा है कि जो पिछले 7 बरस में पाकिस्तान का फॉरेन डेट एंड लाइबिलिटीज़ 65 बिलियन से 130 बिलियन हो गए, यानी हमने सालाना कोई $10 बिलियन का एडिशनल डेट लिया है। और कमरान साहब, ये डेट जो है हमने शॉर्ट टर्म लिया है। हम खुश हो जाते थे जब सऊदी अरेबिया डिपॉजिट देता था या चाइना रोल ओवर करता था, बट वो शॉर्ट टर्म इतना ज़्यादा हो गया है और इतना महंगा हो गया है कि अब हमारी कुव्वत नहीं रही है। तो हमें ये लगता है कि अगले 3 साल में जो 70-75 बिलियन डॉलर पे करने हैं, अगर हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म भी कर दें तो पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं। जहाँ तक आपने गवर्नर स्टेट बैंक की बात बताई, तो उनकी बात मेरे ख्याल में बजा है कि वो बता रहे हैं कि इस साल हम फंडेड हैं, और दो पहले वो कह रहे थे हम मोर देन फंडेड हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जितने हमें ज़रूरत है उतने पैसे मिल जाएंगे जून तक। अब हम दिसंबर में बैठे हैं, 12 में से 6 महीने गुजर गए, तो हो सकता है 6 महीने गुजर जाएँ। हमारा भी हमारी रिपोर्ट में यही एनालिसिस है कि ये जो मलबा है और ये जो सारी रीस्ट्रक्चरिंग है, इसका मलबा अगली हुकूमत पे या केयरटेकर हुकूमत पे गिरेगा। तो ये जो पिछले 6 या 7 साल की अंधाधुंध एक्सटर्नल बोरोइंग थी, उसका नतीजा ये निकला है कि अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि वो क्रेडिटर्स के पास जाए और उनसे अपने डेट को एक्सटेंड कराए या माफ़ करवाए। तो सुलेरी साहब, आप फरमाइएगा कि अगले 6 महीने कोई हमें इश्यूज नहीं होंगे, हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, बैरूनी जिम्मेदारियां, वो हम अदा कर पाएंगे, और इस दौरान जाहिर है जब हम अदा कर पाएंगे तो कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह भी नहीं होगा, और इस लिहाज से ये कंफर्टेबल सिचुएशन है आइंदा 6 माह के लिए, जब तक कि ये फाइनेंशियल ख़त्म नहीं होता। जी शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान मैं नहीं समझता कि डिफ़ॉल्ट करेगा, और उसकी ये वजह नहीं कि पाकिस्तान की माली हालत बहुत अच्छी है। उसकी वजह यह है कि हमें अगर टोटल अपने लोन को देखें तो तकरीबन उसमें से 60% जो है वो तो आपका चला जाता है 2 मुल्कों के तरफ, जो कि चाइना और सऊदी अरब और चाइनीज़ कमर्शियल बैंक का लोन है। तकरीबन 20% जो है वो IMF का और बाकी पेरिस क्लब का लोन है, और उसके बाद आपके कमर्शियल लोन्स आते हैं। तो ये इम्तहान मेरा ख्याल में वजारत ख़जाना का कम है, और जो हमारी वजारत ख़ारजा है उसका बहुत बड़ा है कि आप कैसे एक बैलेंसिंग एक्ट रख सकते हैं कि एक तरफ आप सऊदी अरब और चाइना से अपने रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्टेबल रखें ताकि टाइम पे आपको रोल ओवर और रीशेड्यूलिंग होती रहे, और दूसरी तरफ अमेरिका से इतने अच्छे रिलेशन हो कि IMF जो है वो बेजा तंग ना कर रहा हो और वो वेवर दे रहा हो। तो अगर ये ट्राई का जो है मुकम्मल कर पाता है हमारी वजारत ख़जाना और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स, तो फिर
इंशाल्लाह अगले 1-2 सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये वो जो तारिक अजीज कहा करते थे दा गलती दी गुंजाइश निश्ता दा, कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं पे भी थोड़ी सी स्लिपेज हो गई, किसी एक मुल्क की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया या कोई एक मुल्क नाराज़ हो गया, तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान के लिए मुआशी महाज पे भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें और तकालीफ जो है वो शुरू हो जाएंगी। आसिफ हारून साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बैरूनी अदायगियों की, बैरूनी जिम्मेदारियाँ, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, मुल्क के अंदर की भी तो लाइबिलिटीज़ है, धड़ाधड़ बोरो कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, और दूसरी जानिब है जो उसको अपनी अदायगियाँ करनी है मुल्क के अंदर, वो भी हमें ख़बरें मिल रही हैं कि वो भी नहीं हो पा रही हैं। यही जो बेसिकली जो रिफंड्स वगैरह होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी आखिर वो भी तो हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, वो ना अदा करना वक्त पे और अपनी जो प्लेज है उसको पूरा ना करना, वो भी तो एक तरह का डिफ़ॉल्ट है। मुल्क के बाहर का ही खाली डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता, उसकी क्या सूरत हाल है तमाम जो अदायगियाँ हैं उसके हवाले से? जी थैंक यू कामरान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक है कि जो क्वांटिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन है और एक क्वालिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन है। डेफिनेटली अगर हम बात करें क्वांटिटी यानी जो क्वांटम ऑफ द टैक्स कलेक्शन सो फार है, दैट इज़ एक्चुअली टू द एक्सटेंट दैट के लास्ट ईयर भी हमने फॉर द ईयर का टारगेट का 37% कलेक्ट कर लिया था टिल नवंबर, एंड इस साल भी हमने जो साल का टारगेट है उसका 37% कलेक्ट कर लिया है। बट जो असल इशू है वो क्वालिटी ऑफ दी जो अमाउंट कलेक्ट हो रहे हैं उसके अंदर हमें विजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि उसके अंदर इन्होंने जो टैक्स कलेक्शंस हैं उसमें अल्टीमेटली क्या हम लाइबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो न्यूज़ में जो आ रही हैं नंबर्स वो बड़े सीरियस नेचर के हैं, यानी जो टेक्सटाइल का अगर कोई नंबर कोट हुआ था जो कि 250 अरब का अगर सेल्स का रिफंड आउटस्टैंडिंग है, दैट इज़ ऑल्दो रिफ्लेक्टिंग इन आवर टैक्स कलेक्शंस बट एक्चुअली इट इज़ अ रिफंडेबल, एंड व्हेन द गवर्नमेंट विल रिफंड इट और नॉट, इवेंचुअली ये फिर जाके जो है वो हमारी जिस तरह डोमेस्टिक डेट्स हैं, इसी तरीके से जो अनपेड टैक्स रिफंड थे वो भी एक सॉर्ट ऑफ बोरोइंग है फ्रॉम द पब्लिक। सो इट इज़ अ सिचुएशन विच वन नीड्स टू बेसिकली क्रिटिकली इवैल्यूएट। बात है ना, हमारे प्रोग्राम में ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर कह रहे थे कि जी कि हमारी अपनी जो उनके रिफंड्स है वो नहीं हो रहा। फिर जाहिर है कि वो तो रिपैट्रिएट भी नहीं कर पा रहे, वो दूसरा मामला है, लेकिन वो भी तो बड़ी अजीब सी क्वालिटी है। और प्लस ये कि हमें सब बता रहे हैं कि इनकम टैक्स से और बिहार से फ़ोन आ रहे हैं कि एडवांस जमा करा दो और तुम 50 करोड़ करा दो, तो 50 करोड़ 20 करोड़ अभी एडवांस करा दो। तो ये तरीका कार भी तो है ना, ये भी तो एक लायबिलिटी है। यस, अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन थोड़ी बहुत नज़र आ रही है हमें, और ये बेसिकली देखें ये मसला जो है वो इस तरह से रिजॉल्व होने वाला नहीं है। इसके लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी नज़र में रिफॉर्म है वो एक बार गवर्नमेंट या सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करें कि FBR को हमने ऑटोनोमस इदारा बनाना पड़ेगा, ताकि पॉलिसी लेवल और इन्फोर्समेंट लेवल की जो इंटरवेंशंस होती हैं फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड वो कम से कम उसके अंदर कमी आए। दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट टू इनिशिएट द रिफॉर्म प्रोसेस। फिर हम इन नंबर्स को ट्रस्ट कर सकेंगे ना। सुहेल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल एक्सचेंज रेट की है, वो जो कैफियत है इस वक्त है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहरहाल जो मार्केट का रेट है वो तो 250 रुपए का रेट है ना आज। ये जो 224 और 223 ये रेट तो नहीं है ना। तो ये कब, इसकी कितनी बड़ी कॉस्ट हमारी इकानमी पे कर रही है, जो कि ये हम वैसे तो 2 नहीं 3-4 रेट्स हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं, और वो कब कैसे ठीक होगा? हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ तो अपनी चले जैसे कि आपने फरमाया, और ये गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हम अगले 6 महीने पूरी कर लेंगे, तो ये प्रेशर जो हमारे एक्सचेंज रेट पर है ये कैसे एड्रेस होगा? और ये जो इतनी बड़ी इस वक्त ग्रे और वाइट मार्केट का जो फ़र्क है, ये कितनी बड़ी कॉस्ट हमसे एग्जैक्ट कर रहा है? देखिए कामरान साहब, ये एक हकीकत को हम डिले कर रहे हैं। ये बात अभी हकीकत है कि रेट 240-50 है और अब हम इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं, मगर ये चीज़ है कि चलें इंपोर्ट सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो जो इंपोर्ट्स हो रही हैं उसको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में सियासी ऑप्टिक्स तो ज़रूर है, मगर ये जो फ्री इकॉनमी और जो हमने स्टेट बैंक एक्ट किया है, अब पता नहीं IMF उस पर क्या व्यू लेता है। तो उसकी जो स्पिरिट थी वो तो मार्केट ड्रिवन थी, उसके ख़िलाफ़ है। ना सिर्फ ये है, फिर एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस हैं वो भी गिर जाएंगी। हमारा हिसाब है कि 10 से 20% जो है एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस का असर सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है। तो हमारी रिपोर्ट में हमने यही कहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, या तो ये हुकूमत जाएगी या केयरटेकर हुकूमत आएगी, तो फिर ये जो गैप है वो अचानक से फिल होगा, और जब ये फिल होगा तो मेरे ख्याल में महंगाई बढ़ेगी, इंपोर्ट्स महंगी होंगी,
मगर ये जो डिस्टॉर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा अगर इसका ऑफिशियल रेट या तो करीब आ जाए या अनऑफिशियल नीचे हो जाए, जिसके चांस कम है। तो हमारा ये ख्याल है कि अगले 6 महीने में अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी भी करती है तो जब केयर टेकर आएगी तो वो शायद जो सेंट्रल बैंक जी की स्ट्रेटजी है वो चेंज हो जाए और जो सरकारी रेट है वो फिर ब्लैक रेट के करीब आ जाए। तो सुरेश साहब, क्या ये कहना दुरुस्त है कि हम एक बार फिर उसी अंदाज की एक तबाही के दहाने पे खड़े हैं जो डार साहब पिछली दफ़ा जब वो वज़ीर ख़जाना थे हमें छोड़ के गए थे? 106 रुपये का डॉलर तो उन्होंने रखा था, मगर उनके जाती ही उनके पेशरो मजबूर हो गए और वो फिर जाहिर है कि वो एक्सचेंज रेट को फ़ौरन एडजस्ट होना पड़ा और 106 से फिर पहले तो 135 पे जाके रुके और आज भी ये सूरत हाल है कि 224 पे उन्होंने रोक के रखा हुआ है। कीमत जो है 250 रुपये है और जैसे कि भी आप सुन रहे थे कि चले ये अगले 6 महीने किसी सूरत से गुजारा हो जाएगा, फिर हम इलेक्शन की आवाज़ दे देंगे, तो उसके बाद फ़ौरन बाद तो फिर वो 250 पौने 300 रुपये का डॉलर हो जाएगा और फिर इसी तरह से जो हमारी अदायगियों का बोझ होगा वो आके गिरेगा केयर टेकर गवर्नमेंट पे। तो एक तबाही है जिसके कि हम मुंतज़िर हैं जो अगले अगर सियासी बुनियाद पर ये हुकूमत चलती ही रहती है और फिर किसी तरीके से इसको घसीट के ले जाती है मई तक, तो उसके बाद तो फिर बड़ी मुसीबत ही हमारे सर पे खड़ी है ना। या इसके दौरान कोई जादू की छड़ी चल सकती है या अलादीन का चिराग आप रगड़ सकते हैं, कुछ है इम्कान? देखिए अगर नहीं सिलाइडी साहब, पहले तो ये है कि जी इस पर पहले तो ये है सर कि ग्रेजुअली इस वक्त एक्सचेंज रेट को एडजस्ट होने देना चाहिए, बजाय इसके कि एकदम से 20-25 रुपए का बम गिरे। तो अगर 2-4 रुपए भी रोजाना के हिसाब से वो एडजस्ट होता रहता है तो ये ना सिर्फ ये है कि मार्केट में कुछ सर्टेनिटी आएगी, बल्कि आपके जो एक्सपोर्टर्स जिन्होंने कि अपनी प्रोसीड जो हैं वो डिले कर रखी हैं या रेमिटेंस भेजने वाले जो कि इस वक्त हुंडी या हवाला के जरिए भेज रहे हैं, उनको बैंकिंग चैनल्स पर थोड़ा सा एतमाद आएगा और स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं वो थोड़े से बीफ अप होंगे। तो एक तो ये है कि स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और इसको थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज रेट को एडजस्ट होने देना चाहिए। दूसरी जो इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक जो सारी इस वक्त डिप्लोमेसी चल रही है डार साहब और आसिफ जरदारी साहब सदर मुमलकत के दरमियान, आरिफ अलवी साहब के दरमियान, वो ये है कि किस तरीके से PTI को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये कुछ इकनॉमिक फंडामेंटल्स को जो एडजस्ट करने की बात हो रही है उसमें ना सिर्फ ये कि इलेक्शन की डेट के हवाले से बल्कि दोस्त ममालिक चाइना और सऊदी अरेबिया वो भी इस वक्त इस सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं उससे पहले कि वो अपने को पैकेजेस या अपने रोल ओवर जो है उनको मटीरियलाइज करें। तो उस नहज पे भी, उस फ्रंट पे भी थोड़ा सा बाकी जो कुव्वतें हैं जो कि असरअंदाज हो सकती हैं, मौसर हैं, उनको इस वक्त असरअंदाज होना चाहिए कि कम अज़ कम हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत जो है उसके दरमियान कुछ इस तरह का पैचअप जो है वो बन जाए, क्योंकि ये इस वक्त तमाम सियासी जमातों के मफाद में है। अगर कल को PTI जो है वो कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन जीत के वो हुकूमत बनाएगी तो ये उसके मफाद में है कि वो मुईशत की खातिर पे बात करने के लिए बैठे, और अगर PDM चाहती है कि वो इलेक्शन जीतेगी तो उसको भी PTI को साथ लेके चलना होगा। तो इस वक्त ये सियासी जमातों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बैठे और ये जो कम अज़ कम पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसके बादल जो है ये थोड़े से छट जाएं ताकि दोस्त ममालिक और जो बाहर बैठे रेमिटेंसेस भेजने वाले हैं उनको थोड़ा सा यकीन आ सके। जी, एक जानिब तो सरमायाकारी ज़ीरो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बाहर वाला तो करीब से भी नहीं गुजर रहा पाकिस्तान के, ज़ाहिर है कि ये सूरत हाल है। आसिफ हारून साहब ये बताइएगा, हमें मुसलसल इतलात मिल रही हैं कि एक तो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बुरी तरह से हमारे नौजवान यहाँ से भागना चाह रहा है, जो भी जिसको भी मौका मिल रहा है निकल रहा है, और हमें मुसलसल ये खबरें मिल रही हैं कि जो सरमायाकार है जिसके पास पैसा है वो भी अब जिन्होंने अब तक अपना कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा है बाहर, और वो भी जानी, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है वो बड़ा पुरकशिश ऑफर्स कर रही है जिसके पास भी सरमाया है उसको, और इस तरह से जाहिर है कि आप रूटीन से तो आप नहीं भेज सकते, मगर ये सरमाया रुकता कहाँ से, और वो भी बड़ा इस वक्त जो है हमें लग रहा है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। आप लोगों के पास पल्स होती है, आपको भी इस किस्म की खबरें मिल रही हैं? आसिफ हारून साहब। जी कामराज साहब, देखें मैं ज़रा एक मोटी बात करूंगा कि जो टैक्स इज़ द सब्जेक्ट या सबसेट ऑफ द इकनॉमी, तो इकनॉमी बढ़ेगी तो टैक्स के रेवेन्यू ने कलेक्ट, मगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा सिस्टम उल्टा भी है। यानी अगर अभी हम बात कर रहे थे कि एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत हाई है, हाई इन्फ्लेशन है, टेक्निकली दैट सपोर्ट्स दी FBR's रेवेन्यू फॉर द रीज़न दैट फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अगर एक्सचेंज रेट एवरेज 165 था, इस साल एवरेज रेट 225 होएगा, और अगर हमने लास्ट ईयर की $80 बिलियन से $60 बिलियन की भी इंपोर्ट अगर हमने गिराई भी, इवन देन हमारे पास जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट 700-800 आ सकता है। लाइक वाइज GDP के अंदर हमारी अगर खुदा ना खास्ता कोई ग्रोथ नहीं भी आती, बट अगर इन्फ्लेशन इज़ सो हाई
दैट کہ اسی کا بھی ایک انکریمنٹل فیکٹر ہوگا. لاسٹ بات جو سر آپ نے پوچھی ہے کہ جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ایک کانفیڈنس کا ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے باہر پیسے جانے کا رواج ہے. اب جیسے کل میں ایک نیوز رپورٹ ہوئی تھی کہ پاکستانیز نے پاکستان کے اندر کوئی 6 سے 8 ارب ڈالر کی کوئی گولڈ کی بلینس یا جو انہوں نے بائی کی. تو آبویسلی بات ہے دیکھیں ہمیں وی آل نو دیٹ کہ جو اس کی امپورٹ سائڈ ہے وہ سب ایک جو کچی ہے یا اسمگلنگ کی سائڈ ہے, بٹ یہ تو بات فیکٹ ہے نا کہ کچھ جو پرچیز کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو وائی ناٹ کہ ایف بی آر اس کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ انفورسمنٹ میجرز کے تھرو ان کو آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کر پا رہا. لائک وائز بے تحاشا انفارمیشن آج بھی اویلیبل ہے جو کہ لوکل ایسٹ کی ہے, بینک اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہے جو کہ ایف بی آر کے پاس ہے, اور وہ اس کی ہم جو بہت آسان طریقہ ہے ٹیکس کلیکشن کا, ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پہ ہم بوجھ بڑھائے جا رہے ہیں. اصل جو کریکشن از ریکوائرڈ ایٹ لیسٹ ان شارٹ ٹرم از دیٹ کہ انفورسمنٹ کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے. جی وہ تو آپ نے دیکھا کہ صرف بجلی کے بل پہ 3,000 روپے کا ٹیکس لگایا تھا. بہت ہی بنیادی ایک چیز کی تھی مفتاح اسماعیل نے, تو وہ مریم بی بی نے تو ایک ٹویٹ سے وہ پورا ختم کرا دیا پاکستان کا یہ بڑا ٹیکس میجر. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہم ایکسٹرنل لائبلٹیز کی بات کر رہے ہیں, ایکسچینج ریٹ پہ پریشر کی بات کر رہے ہیں, ریزروز پہ پریشر کی بات کر رہے ہیں, تمام چیزیں کر رہے ہیں. اسی دوران جو ہمارا IMF پروگرام سٹک ہے, جو کہ کمپلیٹلی سٹک ہے, اور اب ہم آلموسٹ کرسمس ہالیڈیز میں داخل ہو گئے ہیں واشنگٹن میں, تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ شارٹ ٹرم میں تو یہ کاز آف کنسرن ضرور ہے کہ یہ ڈیلے ہوا ہے, جس کی وجہ سے ریزرو گر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلیک مارکیٹ ہے جو 240 تھی شاید لاسٹ ویک, اب 250-55 ہو گئی ہے. تو یہ شارٹ ٹرم کاز آف کنسرن ہے. مگر کامران صاحب میرے خیال میں جو ایک پراپر حل ہے نا وہ یہی ہے کہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ IMF کے ساتھ مل کے اپنے قرضوں کو ڈیفر یا اس کو معاف کروانا پڑے گا, یا اس کا مگر آپ کے علم میں ہوگا نا سہیل صاحب, ابھی سلیل صاحب نے ہلکا سا ذکر کیا, مگر میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ چائنا, سعودی عرب, ایون امریکہ, واشنگٹن اور IMF, وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ حکومت کتنے دن کی ہے, کتنے دن چلے گی, کون آ رہا ہے, آگے کا کیا نظام ہے تمہارا. یہ تو ایک ہفتے کا نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ بالکل صحیح ہے, اور یہ میرا خیال میں کرے گی نئی حکومت کو ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ حکومت سیاسی بنیاد پہ نہیں کرے گی. کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اس کا مینڈیٹ نہیں ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو IMF کا لون ہے یہ شارٹ ٹرم ہرڈل ضرور ہے, اور IMF کا اگر لون آ بھی گیا تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا, کیونکہ ہمارا ازمپشن یہ ہے کہ جون میں یا جولائی میں یا اگست میں یا اکتوبر میں جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ 10 سے 15 بلین کا IMF کا ایک نیا پروگرام لینا پڑے گا, اور اس پروگرام کے تحت پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہمیں پھر چائنا اور دوسروں کے ساتھ جو اپنا ڈیٹ ہے یا تو اس کو پارشلی معاف کرانا پڑے گا یا اس کو کم از کم 3 سے 5 سال کے لیے ڈیفر کرنا پڑے گا, ورنہ یہ جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتی. دیکھیے سلیل صاحب مجھے یہ فرمائیے گا, کیونکہ آپ نے اس پہ الوٹ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, کہ اب جو مسئلے ہو گئے ہیں یہ خالی معیشت کے میکرو مسائل نہیں ہیں, یہ بہت ہی سیریس پورے اس کے مسائل ہیں, اس کے امپلیکیشنز بہت سیریس ہیں. اس کے امپلیکیشن ہماری سیکیورٹی کے ہیں, اس کی امپلیکیشن ہماری ڈیفنس پریپیئرڈنس کے ہیں, ہمارے ڈیفنس کے ایکسپینسز کے ہیں, اور یقیناً اسی سے جڑی ہوئی ہے ہماری سالمیت کو خطرہ. ہمارے اپنے تھریٹس ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت ہی اس وقت ایک بہت ہی دگرگوں کا ٹائپ کی صورتحال ہے. بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کہیں بہتری کے آثار نہیں ہیں. ایران کے ساتھ ہمارے مثالی تعلقات نہیں ہیں. اس میں ہمارے سیکیورٹی پریشرز, ہمارے یہ تمام چیزیں, تو یہ جو ہمارا اس حوالے سے جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کے خیال میں وہاں پہ اس قسم کی اویئرنیس ہے, اتنی احساس ہے کہ یہ جو اس وقت معاشی دباؤ ہے اور پریشر ہے اور جو اس کی تشویش ہے اس کے سیکیورٹی امپلیکیشنز ہیں, اور بڑے سیریس سیکیورٹی امپلیکیشنز ہیں؟ جی بالکل اس پہ ادراک بھی ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق بہت سی کنسلٹیشن جو ہیں یہ نہیں کہ وہ اس کا سلوشن کیا ہے بلکہ اس کا ڈائگنوسس کیا ہے, اور اس کے سیاسی اور جو باقی نان اکنامک سلوشن جو ہیں اسپیشلی یہ فارن پالیسی کے تناظر میں, اس پہ اسلام آباد راولپنڈی میں کنسلٹیشنز بھی جاری ہیں. اس کو ایک نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کا پائیوٹ ہے اس وقت اکنامک سیکورٹی, اور اکنامک سیکورٹی باجوہ صاحب بھی اپنی جو فیئر ویل میٹنگز میں انہوں نے بار بار کہا کہ ان کے لیے سب سے زیادہ جو تھا امبیرسنگ یہ ہوتا تھا کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے آرمی ہیڈ ہوتے ہوئے وہ جا کے
दोस्त ममालिक के साथ ये बात कर रहे हों कि जी लोन रीशेड्यूल कर दें, या वेंडी शर्मन को कॉल कर रहे हों कि IMF का प्रोग्राम जो है उसको बहाल करवा दें। तो ये कंसर्न मौजूद है, और इसी कंसर्न की वजह से ये जो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ का आपको इशारा किया कि डार साहब की और सदर आरिफ अलवी के दरमियान जो मेरी इतलात के मुताबिक कुछ मुलाकातें जो हैं वो चल रही हैं, और फिर लाहौर में भी ये मुलाकातें जो हैं ये हो रही हैं। तो ये तमाम चौधरी सालिक जो है वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, वो नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में हैं। तो ये जो कुछ रवाबत हैं ये यकीनन किसी न किसी क्वार्टर की तरफ से ये फैसिलिटेट किया जा रहा है कि इस सारे मुआशी मसले का कोई सियासी हल जो है वो निकाला जा सके। अच्छा, बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट बात और इन अहम बातों में ये कि आसिफ हारून साहब वो किधर गया जो हमारा सबसे बड़ा मसला है। ये सारे मसले हैं, मगर सरताज मसला तो ये है कि टैक्स टू GDP रेशो हमारी 8% है, दुनिया की कम तरीन फीसद। और ये जो पूरा हमारी कोशिश रही है पिछले कई सालों से, बार बार सुन सुन के कान पक गए कि हम डॉक्यूमेंट करें इकानमी को, जो नॉन पेइंग सेक्टर है उसको हम शामिल करें। एक इतना ह्यूज सेक्टर है ब्लैक इकॉनमी का, ग्रे का, उसको हम किसी सूरत से इसमें लाएं, उसकी बहुत बातें हुई। मुझे तो ये, मेरा ख्याल तो ये कि ये तो अब बिल्कुल हवा में उड़ गई है ये चीज़ें, तो अब कहीं ऑलमोस्ट कहीं पे इसका कोई जिक्र ही नहीं है, ना ये FBR की किसी प्रायोरिटी के अंदर है। जो हम जैसे टैक्स पेयर है उनको पीसे जाओ, कोटे जाओ, वही हो रहा है ना। जी कामरान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ज़्यादा मुझे जो डिप्रेसिंग बात लगती है वो ये कि IMF, जिस तरह हम बातें हो रही हैं कि IMF के साथ हम नए प्रोग्राम में जा रहे हैं या जिस तरह लैंडर इंस्टीट्यूशंस के साथ जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी तरफ से जो फरमाइश होती है कि आपने बॉटम लाइन टैक्स इतना कलेक्ट करके देना है। उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए स्पेशली वो इंटरवीन करें कि वो देखें कि वो जो टैक्स कहाँ से कलेक्ट हो रहा है और कहाँ से कलेक्ट नहीं हो रहा। जी हाँ। जो मेरी जो बेसिक कुछ मालूमात हैं, जिसमें FBR के साथ जब IMF बात कर रहा होता है तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट कि आप किस सेक्टर से कितना टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं। दे जस्ट आर इंटरेस्टेड दैट यार बॉटम लाइन क्या है, नंबर 1। तो अब मेरी तो यही सजेशन होगी कि जब भी अगर ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई डिस्कशंस हो, रिफॉर्म्स की बात हो, तो सबसे पहले FBR की ऑटोनॉमी के साथ साथ ज़्यादा जोर इस बात पे भी दिया जाए कि जो क्वालिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन है, कहाँ से टैक्स कलेक्ट, वो IMF की तरफ से अगर प्रेशर आएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिटिकल स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर लैंडर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जिस तरह बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो गवर्नमेंट ने बहरहाल पूरा करना ही करना होता है। तो उसके अंदर एक तो इस किस्म की रिफॉर्म्स की अगर सजेशन आती है तो हो सकता है कि हमारे पास जो है वो थोड़ी बेहतरी की। नंबर सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो हमारे 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस और जो फेडरेशन के दरमियान जो टैक्स की खला पैदा हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि 18वीं तरमीम को रिवर्स कर दें, मगर उसकी स्पिरिट में रहते हुए जो कोलैबोरेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त इस सारी लैक ऑफ कोलैबोरेशन का फ़ायदा जो है वो टैक्स पेयर्स उठा रहे हैं, जो इसकी बीच में गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वो पैसा किसी को भी नहीं देते। तो ये बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं लाइक जो आपने बात की कि जो इतना ह्यूज डेटा ऑफ द अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, ये पता है, मैं समझता हूँ कि ये FBR के पास बहुत डेटा, बड़ा क्रेडिबल डेटा भी मौजूद है। असल बात है बिल की और इन्फोर्समेंट की, और मतलब ये सारी बातें काम करने की अगर नीयत हो तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।